A very warm morning to everyone, respected dignitaries, esteemed members of Galo Welfare Society, and my dear students who have gathered here today. So, firstly, I would like to introduce myself. My name is Kenpi Riba, and I am from Paga village from Laparada district, Pasar. My father's name is late Kartin Riba, who was also a retired APCS officer. And my mother is with us today, Mrs. Chokpi Riba. And I have done most of my schooling from BKV Chimpu, Itanagar. And then I did my graduation in BA Honors History from Miranda House University. And then I did my master's from Ambedkar University. So firstly, I would like to thank Galo Welfare Society for giving us this opportunity and acknowledging our efforts and recognizing our achievement today. So, and my message to the dear students who have gathered here would be that dream big, believe in yourself, set goals for yourself, because this is the right time to work towards your goal. And also, because the efforts you put in today will result and shape the future that you will have tomorrow. And also, my request to the parents who have gathered here would be that always encourage and support the dreams and aspirations of your children, as because your encouragement will result in courage for the students to dream, and also it will give them the strength to chase their dreams. Thank you. My name is Yapi Loya. My mother's name is Dajubata Loya. My father's name is Kamar Loya. I'm from Kabu village. I have done my schooling from VKV Jardin and Ramakrishna Mission School. I have done masters in computer science and engineering. To the students, I'd like to say that this was my second attempt in men's examination, and यही बोलना चाहेगा कि failures are truly the gateway to success. This time, what I did was I reflected upon my previous journey. I worked upon the gaps in my preparation. I made amendments to my preparation, and I was able to score 42nd rank in the APPSC 2024. तो आप सबको हम यही बोलना चाहेगा कि as my fellow colleague has already said, there is absolutely no substitute to hard work. अगर आप के अंदर में determination है, and if you are disciplined, then you are certain to succeed. My best wishes to all the students. और आप सबका ये जो attendance है वो देख के I'm truly happy, and I wish you all the best for the future, and please feel free to reach out to us, the aspirants, or not the aspirants now, the successful officers of 2024 and myself for any guidance throughout the preparation of any level. बस APPSC के लिए नहीं, entrance के लिए भी जो भी level में. So best wishes and thank you. I got selected. So I'm very much thankful. And with this thankful, I would like to extend my thanks to my parents. It is their sincerity, their nurturing. Munok ngom bal in la हम दो ही नहीं तुम्हारा हम लेंबू दो ना हो मुनोक डायरेक्ट होइबे आप लोग के साथ शेयर कर रहा है मुनोक मिनिस्टर सर भी कहता है मुन ओमेओ ताबो तो मिनिस्टर एक था मन पे कभी सर का साथ भी एक हाथ मिलाने का भी मौका मिलेगा कभी बैठने को देखने को भी मिलेगा मिनिस्टर सर ने सिर्फ ताबल लेता हूँ यहाँ तो सारा मैं महिला with this achievement I'm able to share this guys. So आप लोग भी देख सकता है कि जब मेहनत करेगा हार्ड वर्क करेगा आप आइडियलाइजेशन करेगा आपको सक्सेस मिलेगा जो आप बचपन में ड्रीम करता था
जो गोल्स बनाता था वो चीज को अचीव करेगा ना। और जो स्टूडेंट आया हुआ है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स बहुत दिख रहा है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग आए हैं, इट इज वेरी गुड एंड दिस इज द प्रोसेस। आप लोग कम्युनिटी जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ भी चीज होता है जैसे कि स्टूडेंट इवेंट्स होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें आपको बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा, बहुत सारा चीज जानने मिलेगा। आप लोग देख सकता है कितना, स्पेशली वुमेन स्टूडेंट, अब जो गर्ल्स स्टूडेंट है, कितना सारा गर्ल्स देखिए एस्पिरेंट, मोर देन मेल एस्पिरेंट से ज्यादा, कैंडिडेट से ज्यादा सिलेक्टेड है। तो आप लोग के लिए बहुत ही एनकरेजिंग होना चाहिए ना ये चीज भी। एंड आई एम नॉट डिस्करेजिंग द बॉयज, बॉयज में हम यहाँ खड़ा है आपका सामने ना, तो आप हमसे इंकरेजमेंट लीजिए, कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप पर्सनली आपको भी पूछिए, पर पर्सनली क्वेरी कीजिए, आई एम रेडी टू शेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेशली बॉयज एंड दोज हु आर गुड इन स्पोर्ट्स, आई वुड लाइक टू से कि आप कहीं भी आप कुछ भी प्रिपरेशन कीजिए, स्कूल कॉलेज, आप सिविल सर्विसेज के लिए, स्पोर्ट्स को कभी भी मत छोड़िए। हम, मेरा वाइवा से एक दिन पहले तक भी हाँ फुटबॉल खेलने गया था, वो मेरा माइंड को फ्रेश कराता है, रिफ्रेश कराता है, हमको एक बॉडीली इम्यून देता है, एक एंकरेजमेंट देता है, इसीलिए हम हमेशा स्पोर्ट्स को साथ में लेके गए हैं ना, तो उससे बहुत ही अच्छा हुआ, प्रिपरेशन में भी बहुत ही काम आया है। उसके बाद आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू द कलो वेलफेयर सोसाइटी, all the executive bodies, as well as congratulations to my colleagues for your selection. We will be working together. अभी तो बहुत सारा साल आप लोगों को साथ में रहना है, तो यही जो सोसाइटी में भी हम लोग का प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो वी विल बी टुगेदर। एक हेलेन केलर का भी एक बहुत बड़ा लाइन है, टुगेदर, सॉरी, अलोन वी कैन डू नथिंग बट टुगेदर वी कैन डू सो मच। तो ये चीज याद रखिएगा सोसाइटी में भी, तो हम लोग को मिलके रहना पड़ेगा। और टुडे आई एम वेरी थैंकफुल, ये इवेंट भी आलो में ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि ये मेरा बर्थ प्लेस है, हम इसको, मेरा होम टाउन है ना, बहुत सारा जैसे आया है दूर दूर से भी, उन लोग को भी आई वेलकम टू माई प्लेस। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम पॉइंट्स कि अभी आप लोग का पास बहुत एनर्जी है, बहुत ही एनर्जी होगा, एक न्यूट्रल एनर्जी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लड़का लोग भी आप लोग होता होगा कहीं खेती में जाएगा, काम करेगा, पत्थर बुकेगा, लकड़ी बुकेगा, उसमें होने से हम सबसे बड़ा वाले को बुकेगा, ऐसे एज में है आप लोग। तो इसीलिए ये चीज याद रखिए, ये एनर्जी को आप लोग अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कीजिए। बहुत सारे नेगेटिव आप एलिमेंट्स है सोसाइटी में, आपका मान लो अभी मैडम बोला है, रिसो मैडम, डीआईएसपी मैडम, कि आप सोशल मीडिया हो गया, इसका नेगेटिव डायरेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज नहीं कर पाएगा, आपको लाइफ को बर्बाद कर देगा, ऐसे चीज है सोशल मीडिया एज वेल एज जो इंटरनेट चीज है ना। एंड नेक्स्ट थिंग इज आपका जो ड्रग एब्यूज और मेनी अदर थिंग्स आर देयर, जो आजकल सोसाइटी को अंदर ही अंदर से खा रहा है। तो वो चीज को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकना है। आप लोग अभी इतना छोटा नहीं है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट आप उसको देख नहीं सकेगा। एंड माई प्रिपरेशन, हम अपना सिविल सर्विसेज को हम बताएगा, जो मेरा माइंडसेट था ना, हम पढ़ता भी इतना ज्यादा नहीं था, मेरे लिए क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता था। हम 3 घंटा भी पढ़ेगा या फिर 2 घंटा भी पढ़ेगा, उसमें अच्छा से मेंटेन करके रूटीन बना के, डेली रूटीन कैसे सिस्टमाइज करेगा। अच्छा, हम ये पार्ट को 2 घंटा में फिनिश करना है, उसके बाद हम अदर टास्क रखता था, जैसे कि हमको खेलने जाना है या दौड़ने जाना है, या तो फिर कुछ किसी और चीज में एंगेज रहता था, जैसे कि हम कोचिंग क्लासेस भी लेता था जो स्पेशल नीड एस्पिरेंट लोग को। तो ऐसे बहुत बिजी शेड्यूल रखता था, जो तो मेरा 2 घंटा हमको टाइम देता था, 3 घंटा था, उसमें हम क्वालिटी स्टडी को हम ज्यादा वैल्यू रखता था। तो अभी भी आप लोग, कुछ भी एग्जाम होगा, कुछ भी आप लोग का स्कूल एग्जाम होगा या कॉलेज एग्जाम होगा, आप लोग कोई भी छोटा समय पढ़ने से भी आप क्वालिटी को वैल्यू रखिए। आप एक पैराग्राफ पढ़ने से भी उसका जो क्वालिटी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप वास्ट क्वांटिटी, आप जितना भी एक बुक को एक रात में पढ़ लीजिए, अगर वो आपको कुछ वैल्यू नहीं दे पाएगा, आपका लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएगा, तो वो काम नहीं होगा ना। तो इसीलिए आप लोग को हम बहुत सारे स्टूडेंट देख के बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा जो क्लास 12 में भी था, हम जेएनबी में कुछ अच्छा मार्क्स लाया था, तो गालाबा तरफ से वेलफेयर सोसाइटी, उसको भी हम थैंक्स बोल रहा है, क्योंकि उसमें एक टाइल्स हमको नहीं मिल पाया था, उसमें भी हमको फेलिसिटेट किया था। तो आप लोग जितना अच्छा करेगा, सोसाइटी भी आप लोग को उतना ही एनकरेज करेगा और उतना ही आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा। एंड विद दिस
I would also like to highlight certain points regarding parents और आपका जो bureaucrats and all other people present here कि as much as we celebrate the success या victory को हम लोग celebrate कर रहे हैं, it is very much important to encourage or to guide during the process. जो प्रोसेस में होता है उसमें बहुत सारा हेल्प का जरूरी होता है. विक्ट्री तो सब सेलिब्रेट करता है ना, लेकिन प्रोसेस में जो कोर कम्युनिटी होता है, कोर फैमिली होता है, कोर पेरेंट्स, कोर ब्रदर, कोर आपका एक फ्रेंड्स ग्रुप का भी एक कोर फ्रेंड होता है, उन लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है. इट्स नॉट ओनली कि आपको फाइनेंशियली आपको पैसा दो, इट्स नॉट ओनली कि आपको कोर्स खरीदो, किताब खरीदो, आपको जो कभी कभी बहुत हमको भी जो मैं पर्सनली महसूस करता था कि कभी कभी फ्रेशर में आ जाता था. अरे हम एक सर्टेन सेट ऑफ टास्क सेट किया था आज पढ़ने के लिए, लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो कुछ सेल्फ डाउट में आ जाता था, सेल्फ फियर में आ जाता था. अच्छा, तो अगर ये नहीं हो पाए तो कल फिर से वो भी नहीं हो पाएगा. लेकिन उस समय एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल होता है ना जो आपको एनकरेज करता है. मेरा आई रियली लाइक टू हाईलाइट सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरा कोचिंग में भी साथ था. वो लोग हमको बहुत ही एनकरेज किए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन. हम लोग साथ में बैठ के बहुत सारा सिविल सर्विसेज का जो मटेरियल होता है और पॉइंट्स होता है, एक कैलकुलेटिव डिस्कशन होता था. तो हम बहुत ही क्या बोलेगा, नोविस बोलता है, बहुत ही इमेच्योर था सिविल सर्विसेज के लिए. आई न्यू नथिंग. तो उन लोग से सुन के उन लोग बहुत सारा जो 2-3 साल से सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग का पॉइंट्स होगा, डिबेट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, आर्टिकुलेशन होगा, बहुत ही मेच्योर होता था. तो उन लोग से सुन के सीखने मिला है. तो आप एक कोर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी बहुत जरूरी होता है, और फैमिली भी बोला है, ब्रदर्स हो गया, सिस्टर हो गया, आपका जो कोर होता है, और पेरेंट्स हो गया, उन लोग से भी एंकरेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है. एंड नेक्स्ट जो कम्युनिटी है, स्पेशली हम लोग जो गालो कम्युनिटी है, आप लोग भी जो एंकरेजमेंट किया है उसके लिए भी थैंक्स. जो आप लोग हम लोग को फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरा क्लास 12 से हम बोल रहे हैं, क्लास 12 का जो फेलिसिटेशन से बोल रहे हैं, आप लोग का एंकरेजमेंट से एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जब लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, आज के लिए इतना रखेगा, लेकिन जब याद आता है नहीं, हम अच्छा करने से हमको सोसाइटी भी वैल्यू देता है, तो वो चीज बहुत ही काम आता है, आपको हर एक मोमेंट में खुश करता है. एंड स्पेशली स्टूडेंट्स, जैसे कि मैडम लोग भी बोला है, बहुत सारा लोग, कि कुछ भी आपका जो रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, आप लोग को मटेरियल में डाउट होता है, आपका सिलेबस में डाउट होता है, जो प्रोसेस में डाउट होता है, हम लोग कोशिश करेगा एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम बनाने का, अगर पॉसिबल होने से. My name is Nipi Chisi, daughter of Gayir Atta Chisi and Lini Chisi. I belong from Basar, Lapala district of Arunachal Pradesh. So, stepping here, I would like to start my speech through sharing my educational journey with you. I have done my schooling from Government Higher Secondary School, Basar, from 9 to 12. Why I am sharing is mentioning this is because कि हम लोगों का एक फ्री कंसीप्ट नोशन होता है कि ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स कैन एक्सेल. ऐसा नहीं होता है. हम खुद एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट है टिल 12. सो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में हम लोगों का मटेरियल भी सेम होता है. वो लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग भी वही पढ़ते हैं. फर्दर हम तो बोलना चाहिए कि आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव वेरी गुड मेंटर्स इन गवर्नमेंट स्कूल. सो आप लोग अपना आप को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि हम गवर्नमेंट स्कूल है तो आई एम लेसर देन स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल. ऐसा नहीं होता है. अगर आप कंसिस्टेंट रहे और हार्ड वर्क करें, और आपका जो मेंटर्स एंड जो पेरेंट्स होता है ना, वो आपका भलाई के लिए बोलते हैं, वो आपके अगेंस्ट कभी बात नहीं करेगा. सो अगर आप उनका डायरेक्शन को फॉलो करें और हार्ड वर्क करना ना चाहे तो आप किसी भी फील्ड, नॉट जस्ट इन सिविल सर्विसेज, बट कोई भी फील्ड में आप जरूर एक्सेल करेगा. सो आई वुड से कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल पे हो या प्राइवेट स्कूल पे, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. आप हार्ड वर्क करना ना छोड़े. देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू हार्ड वर्क. आप हार्ड वर्क करेंगे तो जरूर एक्सेल करेंगे. And further, after my schooling, I have done my graduation in BSc Nursing from Rama University, Kanpur. और इसी से ही मेरा APCS जर्नी स्टार्ट हो गया था.
because you know my father has been a big inspiration in my life because he is a very giving person. वो हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो फायर के अंदर हमेशा रहता है। सो उनको जब मैं हम देखता था तो हमको लगता था कि मेरे फादर का जैसा तो हम नहीं बन पाएगा। सो क्या रास्ता होगा जहाँ से हम पब्लिक से कनेक्टेड रहेगा या पब्लिक सर्विस करेगा। सो आजकल सोशल मीडिया का एरा है, उसमें हम यूट्यूब वीडियोस में देखता था टॉपर टॉक्स, यूपीएससी टेक पीसीएस का जो टॉपर टॉक्स देखता था, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जगा है कि आई विल ट्राई ऑन सिविल सर्विसेज। सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई कन्वेड दिस टू माय फादर दैट Abu, I don't want to continue nursing. I want to pursue civil services, and without any question, what my parents, my Anna and Abu, have believed in me. They supported throughout my journey, and I would like to take this moment to thank them, Anna and Abu. I hope you're proud. And without you guys, I wouldn't have been, you know, successful in this journey. So thank you so much. And इसी के साथ I would like to add कि to my dear young friends, आप लोग अपना why, you know, आपका दिल में जो why क्वेश्चन आता है कि why I want to do this, कोई भी फील्ड में हो, वो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। बिकॉज आफ्टर माई ग्रेजुएशन हमको सीधा एग्जाम लिखना था, बट फियास्को के कारण एग्जाम जो बहुत डिले हो गया था। सो 2024 में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ DYSP। Why हम इसको क्यों मेंशन कर रहा है बोलने से, बिकॉज आई वुड बी दी second lady DSP after Tichi Henyer ma'am and the first directly recruited DSP from Galo community. I am mentioning this because from our fellow female friends कि हम लोगों का यहाँ पे मतलब सोसाइटी में कभी कभी फ्री कंसीव नोशन होता है कि women are subjected to certain kind of jobs only. तो I will say कि don't limit yourself, अपना अंदर में कोई भी mental barriers नहीं रखना चाहिए, क्योंकि today when we talk about women empowerment, we need representation of women in every field. तो आज का दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है, तो आप लोग अपना माइंड में जो फेलो हम लोगों का मेरे वुमेन यूथ है, आप लोग प्लीज अपना माइंड में कोई बैरियर ना रखे। यू कैन एक्सेल इन एवरी फील्ड एंड आई वेलकम यू। आप कोई भी फील्ड में आइए, आप लोग वहाँ एक्सेल जरूर करेंगे। सो डोंट पुट एनी मेंटल बैरियर ऑन योरसेल्फ। फर्दर I would also like to request the society कि the youths are the pillar of society today, and historically भी Galo community जो हम लोग का forefathers से लेके हम लोग का जो seniors है, they have done very good job। Galo community का नाम को वो लोग बहुत आगे ले गए, हम लोग का जो सीनियर्स है और जो forefathers है। सो आई होप कि हम लोग यंगर जनरेशन जो कमिंग जनरेशन है वो ये ट्रेंड को ब्रेक होने नहीं देना चाहिए, हम लोग उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे कंटिन्यू करेगा बोलने से, द सोसाइटी कमिंग टुगेदर, हम लोग जो बहुत सारा पोटेंशियल होता है यूथ में, उसको हम लोग जो पहचान के हम लोग एज अ कम्युनिटी वो लोग को हेल्प करना चाहिए। एंड बिकॉज बहुत सारा पोटेंशियल यूथ क्या होता है कि ऑफन डायरेक्शन लेस का कारण ड्रग एब्यूज एंड अदर चीज में भी चला जाता है। तो स्पोर्ट्स बोलो या एजुकेशन फील्ड में जहां भी हो, हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, एक डायरेक्शन देना चाहिए, सो दैट दे कैन एक्सेल इन एवरी फील्ड। एंड हम लोग गालो कम्युनिटी एज अ होल उनका नाम को हम लोग आगे ले जाने के लिए। फर्दर फॉर पेरेंट्स आई वुड से कि प्लीज बिलीव इन योर किड्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज ही एक करियर है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आई कन्वे कि मेरे पेरेंट्स को हमको सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड था, सो दे सपोर्टेड। विदाउट देयर सपोर्ट ये नहीं होना था। सो आप लोग का किड्स को, अवार्ड्स को, अगर वो लोग कुछ भी चीज में करना चाहे तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आप लोग का सपोर्ट ही बहुत मैटर करता है हम लोग का मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। सो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए अपना पेरेंट्स को, नॉट जस्ट इन सिविल सर्विस, एनी अदर फील्ड। फर्दर this time the competition was very high, और future में भी competition तो बढ़ते ही जाएगा। This time around 22,000 people have filled up the APCS form। वहां से around 1600 लोग ने prelims qualify किया था। Further 420 students ने mains clear किया था। फिर further
ऑल टोटल 140 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है. सो यू कैन सी माय फेलो यूथ कि कंपटीशन कितना है, आप लोगों को कितना लोगों का साथ कम्पीट करना है, वो भी बेस्ट ऑफ माइंड्स लोगों के साथ. सो प्लीज आप लोग अभी से, बिकॉज जब हम लोग सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में भी वी स्टडी बेसिक 11 एंड 12 का एनसीईआरटीज जो पढ़ते हैं, हम वो ही पढ़ते हैं. सो अभी से ही आप लोग स्कूलिंग समय से ही उसको जस्ट पास होने के लिए मत पढ़िए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़िए, तो आपको फ्यूचर में भी वो हेल्प करेगा. और आप ऐसा नहीं है कि जस्ट, और ये एक मिथ रहता है कि सिविल सर्विसेज इज वेरी टफ और सिर्फ टैलेंटेड लोग इसको क्रैक करते हैं. यस इट इज टफ, बट देयर इज अ कंप्लीट सिलेबस देयर. अगर आप उसमें स्टिक रहे और हार्ड वर्क करेंगे तो इफ आई कैन डू इट, एज एबी मैम हैज आल्सो सेड दैट इफ वी कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट. आप लोग ऐसा मत सोचिए कि जस्ट टैलेंटेड लोग ही ऐसा करता है. टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क का कोई काम नहीं होता है. सो आप लोग हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंट रहे. Rogamber, ngok Miss Ibe Riso, ngok aboga amina Dr. Tai Riso, ngok ana Mokbudu, bag amina Mrs. Yai Raga Riso. I come from ngok Galo Amja Alma, mo town lo ragu namahi, Galo Amja Jablak ma, amlaga map laga mo English ya Hindi way Jabra gui. So I belong from Lower Siang district, a small village called Quarter Village. And I have done my schooling from Pasighat, East Siang district, because my parents were posted there for a very long time. And I have graduated in civil engineering from UBDT College of Engineering, Damangiri, Karnataka. Okay, so now that the introduction is done, first of all, I would like to extend my sincere thanks to the Galo Welfare Society for recognizing our success. I think it substantiates our success and makes it an even better, even greater reality, our success. So thank you for that. And second of all, I think that organizing such events, it sets a precedence, it sets an example for the future generation to continue the legacy of Galo Welfare Society. And it also serves as an inspiration for all the young aspirants, the future civil servants sitting here, so that they also get inspired to stand here someday. So thank you so much to the esteemed members of Galo Welfare Society and to all the dignitaries present here. Thank you so much for taking out your time. And when it comes to motivation, I still feel that I am quite underqualified to give out any advice. फिर भी I still consider myself a student. तो आप लोगों को सभी जो यहाँ स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम तो बहुत ही खुद भी बहुत अंडर क्वालिफाइड फील करता है. बट अगर आपको हम कोई मोटिवेशन दे सकता है तो वो ये है कि कीप योर गोल्स वेरी क्लियर इन योर लाइफ. आपका कुछ भी गोल हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट है अगर, तो योर गोल शुड बी योर फाइनल एग्जाम्स. दैट शुड बी योर गोल. यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. यू हैव टू कट द डिस्ट्रैक्शंस कट करना पड़ेगा. दैट होल्ड्स ट्रू फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल. सिविल सर्विसेज के लिए आपको बहुत एक फोकस्ड अप्रोच रखना पड़ता है. यू हैव टू कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. आई हैव नो सोशल मीडिया. मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है. आई डोंट सोशलाइज, आई डोंट गो आउट टू पार्टीज. तो आप लोगों को ये जो हैबिट होता है ना डिसिप्लिन रहने का, वो बचपन से ही स्टार्ट कर देना होता है. And you have to keep reading. I would like to urge the youth, all the students present here, to start reading something. आप जितना पढ़ेगा उतना आप लिख पाएगा. To be a good writer, you have to be an avid reader. तो अगर आप पढ़ेगा तो आप लिख पाएगा, अगर आप लिख पाएगा तो अच्छा बोल पाएगा. तो इट्स अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ एन अप्रोच. सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग समथिंग. अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो रीड द पोएम्स. आई यूज्ड टू रीड ऑल माय पोएम्स इवन बिफोर द स्कूल स्टार्टेड. मेरा पूरा इंग्लिश का पोएम्स, हिंदी का पोएम्स पढ़ चुका होता था. तो स्टार्ट रीडिंग, inculcate the habit of reading. That will help you in your interview as well. And second, writing तो it's a kind of talent भी होता है. किसी का naturally writing आ जाता है तो उसको तो इतना वो नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा. बट रीडिंग यू कैन डू. आप पोएम्स से स्टार्ट करो. And then if you're looking to get into the civil services or any competitive exams, I believe in C3 formula. That is competence, confidence, and consistency. So to be confident, you have to be competent.
कॉम्पिटेंट मीन्स आपको बहुत उसमें स्किल्ड होना पड़ता है, कॉम्पिटेंट होना पड़ता है. सो व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट यू बिकम कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंसी कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी. अगर आप एक ही चीज में कंसिस्टेंटली वर्क करता है ना तो आप ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेंट हो जाता है. ठीक है, तो आप लोगों को बिना डिस्ट्रैक्शन का बहुत ही कंसिस्टेंटली वर्क करना है. उसके बाद इनकलकेट गुड हैबिट्स. वो स्लीप साइकिल जो होता है, रात को सोना, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, वो सबको आपको बचपन से ही इनकलकेट कर देना है. बिकॉज आई बिलीव दैट टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर. अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहता है आपको ऑफिसर जैसा हैबिट्स लाना पड़ेगा अपना लाइफ में. सो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. आप कोई भी ऑफिसर को सुबह 10 बजे से तो लेट आप उठने वाला कोई ऑफिसर नहीं देखेगा. तो डू दैट. Inculcate good habits in your life, and then be very positive. Na, surround yourself with positive people. Be a positive influence to your friend circle, and then just be very rooted. Because I think one source of inspiration for me and one source of motivation were my parents. They never forced me, but मेरा एक ये था कि I have to make my parents proud. Right from the school days itself, I used to participate in essay competition. I used to participate in debate competitions and speech competitions. So just keep your parents in your mind. हमेशा ये रखना है कि whatever you do is a reflection of your parents. तो parents जो आपको इतना जन्म देता है, इतना पालन पोषण करता है, उसको हमेशा दिमाग में रख के work towards a goal. And I don't say don't limit yourself also. ना ऐसा limit मत कर दो कि इसी में ही करना है. Be very diverse in whatever you do. And वही हम बोलेंगे, बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड. और इतना कोई टफ नहीं है सिविल सर्विसेज. एंड लाइक लोया मैम सेड, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए होता है, वी आर वेरी ओपन टू रिसीविंग योर मैसेजेस एंड योर क्वेरीज. तो अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी चाहिए होता है तो यू कैन ऑलवेज रीच अस. ये हम लोग हमेशा रेडी रहेगा. एंड हम तो वही बोलेगा कि इफ आई कैन डू इट, आई बिलीव दैट एनीबडी कैन डू इट. ऐसा नहीं है कि बहुत कोई टैलेंटेड है हम कि हम ही क्रैक किया है, ऐसा नहीं है. इट्स वेरी डूएबल. यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. अगर आप लोग स्कूल में है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए आपका प्रिपरेशन. और यू नेवर नो, यू माइट बी द नेक्स्ट पर्सन स्टैंडिंग हियर ना, रिप्रेजेंटिंग योर एरिया एंड योर पेरेंट्स. तो माई गुड विशेस and my sincere thanks once again to the Galo Welfare Society for giving me this platform. And thank you so much. You are executive magistrate, district magistrate. तो अभी भी ये पार्ट आपके पास है. लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजन या जो है सेशन जज तो आएगा नहीं. आपको ही संभालना है. तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. इसमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है. बहुत टेंशन तनाव होता है. कुछ हो ना जाए, रोकना, सिचुएशन को मॉनिटर करना, उसको नॉर्मलाइज करना, पेसिफाई करना, बहुत तकलीफ होता है. Yadla hodun efficiency crack padu hodun namsen pildana aire agoba hukila no English hukila ya no Hindi hukila ya no aire identity agoba yola hukila ya no galo he ere mana ekle ga bo kana play karon no anne no abo nom ne beda ko galo be kuda ekla bo wonu ne pindu ai ga ma ba la angore ne mo nge indi ga ba inko uga identity ne du na da ago bi ne nan mane identity is lost. He go bring up like with the brain of these efficient officers, you should not end up here. You should have a long way to go. And you should have a long goal. Now you prepare for UPCSC. And there are many standing examples of our efficient officers, circle officers, who have cracked the UPCS exam. आप भी UPCS एग्जाम के लिए कोशिश कीजिए. अभी से शुरू कर दीजिए. अभी मैं एपीसीएस मिल गया, बस इसने का प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक किया. यहाँ पे
खत्म मत कीजिए यहाँ पे सिटीजन मत No president mende message potai toka district unit western sim JWS ke felicitation ignam lagabo dogong bagde sar ke initiation la marker lolen sar ke initiation la NT agam hi albo me mail toka oka hilong nuk salit no mona vision hai since IRN headquarter bo government approve namme Galo youth organization government la focus lo in my bang anyaga tehin ko tu oka mucho sa sin ko tu oka laga bo mobilization laga bo ng galo legislator gatem mai ye ba allo ne meeting ko ngun gokpa bolo ngohin allo ne tokluge ku ngom na ni ya he sai ona sai ka ge ngo sai tu ngono president all in ek mong de elme mo bokpa oka silawan jigong pa na oka nam congratulation oka na bangchen ngomoja congratulation jidu no no civil service la pato kulo ijaga ni community ke bega yen mem ko gelo galo apauga yegong to go lagabo nonu ga service life la igur kenna mengur kenna bitaloka first of all community ga growth and cause loka elomo being a affects JWS के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते नॉन मो सिम रिक्वेस्ट दूना ओका कॉलेज आओगा तो कोई आगे दो दे नहीं जाएंगे बा अब ये ओका कॉलेज आओगा तो नॉनो बोरे काटे पड़ी गए का प्री मोपिन पोस्ट मोपिन योगा ड्रग्स लोयो का सिलोगा आउट ऑफ प्री पान का सब नॉनो कोशिश तासिन पर लगे नॉनो अदेको सिंसियर ये दे नॉनो अदेको डिसिप्लिन ये दे नॉनो निगम जिते इनाम पाए ओका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ला पोस्ट लर्न पर बिजी ओका first नॉनो का एज इमोदाबो नॉनो गवर्नमेंट जॉब ट्राई तो का ओको किला लाइफ सीक्वेंस हो इकेंडा ते नॉनो मो इतलोकल मुएदा